morning from Bhavnagar. নমস্কাৰ আমি আছোঁ এতিয়া নীলামবাগ পেলেচ হোটেলত এইটো বনাইছিলে 1869 ইটছ এ হেৰিটেজ হোটেল 4-star হোটেল we are having breakfast it was built by the Kohil dynasty and everything feels so heritage the rooms the interiors royalty with some মানে heritage it feels very nice আৰু যিটো মিউজিক প্লে কৰি থাকে বাহিৰত ৰিসেপশ্যন say something about the normal breakfast it combination হয় it's bread and butter so ইয়াতে আমাৰ সাউথ ইণ্ডিয়ান আছিলে অলপ ইডলি সাম্বাৰ আছিলে মহাৰাষ্ট্ৰ স্পেচিয়েল পোহা আছিলে এইফালে দেখাই দিয়ক so it is a combination of everything presented Banana 1 minute. Good morning. breakfast. Yes, this is. What did you had in your dinner last night? what did you have We had mutton biryani and chicken biryani. Both were excellent. tender Very succulent, juicy. ultimate Rice was very fluffy and empty. Ultimate. We're in the Royal Palace. Yes. Feel like Nawab of ki Bhavnagar. Bhavnagar. But they were actually from Mewar of Rajasthan. Okay. I don't know. How was your feeling? Oh, it's excellent. Excellent, no? Beyond words. Okay. Go outside and The main show. area. Yeah, this is the main area. एक राजा का फिक्स है और एक कौन ये राजा लोग कौन है? पता नहीं कौन है आदमी है हाँ, कोई आदमी तो है हमें क्या पता हमें तो एक मौका मिला दिन अच्छा लगा रॉयल पैलेस में रुकने का मौका मिला वही अच्छा है इतिया का वो भी क्या बोलते हैं रानी का क्या है वो पालकी चलो तो थोड़ा सा आगे जाते हैं हम में जाना है तेरे को क्यों रूम में जाना है आजा नहीं हो जाएगा ये कौन है किसी का बाप होगा This is the campus. টেনিছ কোৰ্ট এটা আছে তাত ছুইমিং পুল আছে যোৱাকালি ৰাতি গ'ল কোনোবা মই নাই চোৱা বাৰু দেন এটা গাৰ্ডেন ৰেষ্টুৰেণ্ট এখন আছে এইফালে ৰাণীৰ আগৰ দিনত পূৰা এক্সপ্লইট কৰিছিলে চেগুন হাল যি পায় তাকেই একদম মাৰি দিছিলে আৰু যাবই মন নাই পেলেচটো এৰি পেলাই এতিয়া হ'ব লাগিছিল এদিন থাকিব পাৰিছিল এদিনে থাকিলোঁ আৰু হ'ব ইটছ অ'কে হ'ব আৰু দে উইল কাম বেক এগেইন চামটাইমছ আই থিংক কিন্তু ইয়াত আহি কি কৰিম কৰিবলৈ একো নাই পিছে জেগাটোত ভাৱনা খাবি এয়া এইটো বেকয়াৰ্ড হয় বাৰু আমাৰ বাছবোৰ ইয়াতে পাৰ্ক আছে আমি এতিয়া যামগৈ এতিয়া 100 বছৰ পুৰণি আমি এই চুইংখনত উঠিলোঁ এই তিনিটা প্ৰকাণ্ড মানুহ আমি এইখন যদি এটা প্ৰকাণ্ড নহয় মোক প্ৰকাণ্ড ধৰিছে যে এটা ওখ নহয় নেকি ওখ হ'লেতো প্ৰকাণ্ড হয় ৱেইট বেছি থেংক ইউ কোনোবাই যে কৈছে মোক এনে কেটেঙা নাম পাই এইবাৰ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে প্ৰকাণ্ড নাম পাইছে থেংক ইউ চাইনিকা চেল চলি আছে শাৰী চেল নেলাগে মোক এই শাৰী চেল চালোঁ চুৰতত সোমাব লাগিব গাড়ী আহিছেতো এইফালে যাওঁ বাহিৰৰ ফালে হেল্ল' এভৰিৱান এইটো হ'ল ব্লেকবাক নেশ্যনেল পাৰ্ক আমি এতিয়া ভিতৰলৈকে গৈ আছোঁ নেশ্যনেল পাৰ্কৰ सबसे पहले आप सभी को अभिनंदन देता हूँ कि ये डिपार्टमेंट को आपने अपनी मर्जी से चुना है दूसरे कई डिपार्टमेंट हैं मगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सबसे अलग है ये काम जो हम करने जा रहे हैं हम आगे आने वाले समय में जहाँ पे भी आपका पोस्टिंग होगा नेशनल पार्क है सेंचुरी है रिजर्व फॉरेस्ट है सोशल फॉरेस्ट्री है कहीं पे भी
उसमें आपका रोल जो होने वाला है वो दूसरे डिपार्टमेंट के हिसाब से हमारा रोल है सबसे बड़ा है, क्योंकि समग्र जीव सृष्टि, पर्यावरण सृष्टि, वन्य जीव सभी के लिए जो बेजुबा जानवर है, पशु पक्षी है, उसकी आवाज़ बनकर काम करने का मौका ईश्वर ने हमको दिया है। वो समंदर के नीचे था। ग्रेजुअली द वाटर हैज रिसीड, ईस्टवर्ड चला गया पूरा समंदर, और ये जो एरिया पूरा था वो क्लाइमेट के हिसाब से, इकोलॉजिकल सक्सेशन के हिसाब से उसकी जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी आई वो ग्रासलैंड आई, क्योंकि यहाँ का जो रेनफॉल था, वो जो एरिया है वो सेमी एरिड टाइप का एरिया है, रेनफॉल कम है, 500 to 600 मिलीमीटर रेनफॉल है एनुअल, तो ये सेमी एरिड की डेफिनेशन में आता है। तो इस हिसाब से ये ग्रासलैंड बना। तो प्रिंसली स्टेट के जो टाइम थे बिफोर इंडिपेंडेंस, दिस एरिया वाज अंडर रूल ऑफ महाराजा भावनगर, yesterday where you have stayed, that is the Bhavnagar was a princely state, and पूरे सौराष्ट्र रीजन में that was the second largest princely state. तो ये जो एरिया था वो entire area was a range land or a grazing land for the rulers of Bhavnagar. तो इस हिसाब से इसको प्रोटेक्ट किया जाता है। बाहर एक पिलर है, यहाँ एंटर आप बाहर जब निकलो तब देख लेना, तो वो 125 इयर्स पुराना एक पिलर है, इंफॉर्मेशन पिलर दिया गया है। वहाँ पे लिखा है उस टाइम के रूलर ने कि कोई इलीगल पोचिंग करेगा तो उसको 100 रुपीज का फाइन है। बिफोर 120 इयर्स बिफोर, द फाइन फॉर द पोचिंग was 100 rupees. Now you imagine कि उस टाइम पे कलेक्टर का सैलरी भी, जो टॉप लेवल का डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर था, उनका सैलरी भी 100 रुपीज नहीं था। आज से 125 साल पहले उस टाइम इतना ज्यादा फाइन रखा हुआ था भावनगर महाराजा ने कोचिंग के लिए। तो दिस वाज द स्टेटस ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इन दोज डेज इन दिस एरिया। तो इसी हिसाब से ये पूरी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्ट हुई है। आफ्टर इंडिपेंडेंस सिनेरियो चेंज हुआ और ज़्यादातर ग्रासलैंड थी वो कल्टीवेशन में आ गई, लैंड अलॉटमेंट हो गया, क्योंकि मोर फूड प्रोडक्शन की ज़रूरत थी, तो हैबिटेट धीरे 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 श्रिंक हो गया। तो यहाँ का जो हैबिटेट था वो काफ़ी श्रिंक हो गया। यहाँ जो पिक्चर्स दिखाए गए हुए वो ब्लैक बक्स का रिलेशंस दिखा गया है। ये क्लासिकल रागा के साथ उसका रिलेशंस है, जो जहांगीरनामा और अकबरनामा नाम के दो जो बुक्स है उसमें रिकॉर्डेड है कि राग भीम पलासी और टोडी, ये दो राग है क्लासिकल सॉन्ग के, वो ब्लैक बक को अट्रैक्ट करते हैं, ऐसा रिकॉर्ड है उसमें। देन मुगल टाइम में ब्लैक बक हंटिंग विथ चीता, ट्रेन चीता से होती थी, वो ब्रिटिश कॉलोनियल टाइम में भी कंटिन्यू रही और काफ़ी राजा महाराजाओं के साथ पास अपने ट्रेन्ड चीता थे। हालांकि लिटरेचर ऐसा कहता है कि जो कॉलोनियल टाइम में जो चीते थे वो सब अफ्रीका से ही लाए गए थे, क्योंकि इंडिया के चीते तो काफ़ी पहले से हमने मार डाले थे, तो इंडियन चीता नहीं थे। लेकिन मुगल्स जो ट्रेन करते थे वो 100% इंडियन चीता थे हमारे। तो ये ब्रिटिश मुगल समय का था, ये हमारे कॉलोनियल टाइम का है, ये महाराजा भावनगर का ही है। अभी यूट्यूब में उसका वीडियो भी घूम रहा है, ओरिजिनल वीडियो, कि 40 से 50 तक 1930 से 1950 20 साल भावनगर महाराजा यूज्ड टू टेक दिस ट्रेन्ड चीता फॉर ब्लैक बक हंटिंग इन दिस ग्राउंड। ये पूरा जो था वो 2500 स्क्वायर किलोमीटर का जो पूरा इलाका था वो उस हिसाब से गेम हंटिंग के लिए रूलर्स उसका उपयोग करते थे। अभी ये देखो कि ये जो अपना हिस्टोरिकल ब्लैक बक डिस्ट्रीब्यूशन था, ये नाउ दैट वाज श्रिंकिंग। अभी गुजरात का जो ये था इसके हिसाब से सौराष्ट्र, ये सौराष्ट्र रीजन है पूरा, ये कच्छ रीजन है, तो सौराष्ट्र रीजन पूरा इट वाज फुल विथ ब्लैक बक वंस अपॉन अ टाइम। अभी ये पूरा हिस्टोरिकल जो है वो था। अभी ये जो पैचेस जो बच गए हैं अभी वो 1990s ऑनवर्ड्स का है, अभी इसमें भी थोड़ा श्रिंक हो गया हैबिटेट। तो ये आप देख सकते हैं कि कितना हैबिटेट है वो जा रहा है हमारे
पास एनिमल्स के लिए, और पॉपुलेशन है वो डाउन हो रहा है। ब्लैक बक इज ए सॉल स्पीशीज ऑफ एंटीलोप सर्विकेप्रा, हमारा एंडेमिक स्पीशीज है इंडिया का, और कहीं पे नहीं है। तो इस हिसाब से उसका बहुत ज़्यादा कंजर्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू उसका महत्व ज़्यादा है। ये जो है अपना पार्क है अभी प्रेजेंट, ये इंडिया का नक्शा है, और ये पूरा जो वो काफ़ी चीज़ों के लिए पूरे इंडिया में यूनिक है। पहली चीज़ तो उसकी जो फ्लैगशिप स्पीशीज़ है हमारी, वो ब्लैक बक है, जिसके नाम से ये पार्क जाना जाता है, ब्लैक बक नेशनल पार्क। तो ये हमारी फ्लैगशिप स्पीशीज़ है। तो पूरे इंडिया में इतने ज़्यादा नंबर के एनिमल्स इन ए सिंगल हर्ड आपको कहीं नहीं मिलेंगे यहाँ के सिवा। ब्लैक बक्स आर एवरीवेयर, मध्य प्रदेश में भी है, राजस्थान में आप जाके आए वहाँ भी है, लेकिन यहाँ आपको एक ग्रुप में 1000 एनिमल मिलेंगे। इतना बड़ा ग्रुप स्ट्रक्चर ब्लैक बक नेशनल पार्क वेलावदर के सिवा पूरे इंडिया में कहीं पे नहीं है। दूसरा जो ये है वो ये है यहाँ का ब्लैक बक की एक बेसिक ये उसकी स्पेसिफिक जीन पूल है यहाँ का पॉपुलेशन का। और ये जीन पूल की ये कैरेक्टरिस्टिक है, ये इसको हम बोलते हैं लैकिंग ग्राउंड। लैक LEKK, लैक जो है वो एक टेरिटोरियल एनिमल जो होते हैं उसकी टेरिटरी का एक टाइप है, और वो लैक वाला जो ग्राउंड है उसको लैकिंग ग्राउंड हम बोलते हैं, जिसमें क्लस्टर के हिसाब से उसकी टेरिटरी बनती है छोटी छोटी। आप देखो ये टेरिटरी है, ये टेरिटरी है, ये टेरिटरी है, ये टेरिटरी, ये सब टेरिटोरियल मेल है, ये सब वहीं रहते हैं, ये अपनी टेरिटरी छोड़ के कहीं नहीं जाते। ये जो टेरिटरी की साइज होती है वो 100 स्क्वायर मीटर से लेकर के ऑलमोस्ट 500 to 700 स्क्वायर मीटर की एक टेरिटरी होती है। कुछ एनिमल में ऐसी बिहेवियर दिखती है, खास करके जो सी बर्ड्स होते हैं, कोस्टल बर्ड्स होते हैं, उसमें ये बिहेवियर बहुत कॉमन है। लेकिन मैमल्स के अंदर काफी कम एनिमल्स है जो ये बिहेवियर दिखाते हैं, और पूरे इंडिया में ऐसे लैकिंग ग्राउंड ब्लैक बक नेशनल पार्क के सिवा कहीं नहीं है। दैट मे बी ड्यू टू ए कॉम्पैक्ट एरिया विथ ए ह्यूज पॉपुलेशन, ये उसका रीजन हो सकता है। MK रणजीत सिंह करके हमारे एक रिटायर्ड IAS ऑफिसर अभी है, वो ही इज 86 नाउ, हु हैज ड्राफ्ट एंटायर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जिसने ड्राफ्ट किया, पूरा लिखा है, जिसने बनाया है, वो रिटायर्ड हुए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के सेक्रेटरी के डेजिग्नेशन से, वो गुजरात से हैं, और पूरा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो 72 में इम्प्लीमेंट हुआ उसने ड्राफ्ट किया है। उसका PhD जो है वो ब्लैक बक के ऊपर है। वो कहते हैं ये इसका है कि ये स्पेसिफिक जेनेटिक पूल जहां हमारा जीन पूल है यहाँ का, ये बिहेवियर कहीं पे उसने नहीं देखी। पूरे इंडिया के ब्लैक बक्स के ऊपर उसने स्टडी किया है, और उसकी थीसिस है इंडियन ब्लैक बक के नाम से बुक के उससे पब्लिश हुई है उसकी बुक, उसकी थीसिस। तो ये यहाँ की एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। सर ये क्यों करते हैं, मतलब सर मेटिंग सीजन में करते हैं? यस, ये लेकिंग ग्राउंड है, उसमें मेल यहीं रहते हैं, वो मोस्ट एनर्जेटिक होते हैं, और फीमेल जब स्ट्रेस में होती है और यहाँ से जब पास होती है तो उसके साथ वो कॉर्टशिप करते हैं, और फीमेल जो रिसेप्टिव कंडीशन में है तो फिर उसका मेटिंग होता है। ये कॉर्टशिप डिस्प्ले है, अगर फीमेल रिसेप्टिव है तो मेटिंग होता है। अगर कोई दूसरा मेल उसकी टेरिटरी में आता है तो उसके साथ फाइट होगी और उसको वो भगा देगा, और फीमेल को वो वेलकम करेगा, क्योंकि हर एक एनिमल की टेंडेंसी होती है कि उसके जीन्स को है मैक्सिमम वो परकोलेट करे, नीचे की जनरेशन में वो डाले, तभी वो उसकी एनर्जी रहती है। इसलिए तो ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का जो लॉ है डार्विन का, वो यहाँ दिखता है। और बहुत इंटरेस्टिंग बात उससे आगे आती है, मैं आपको बताऊंगा। तो ये उसकी बिहेवियर है कि यहाँ से जब फीमेल आती है तो टेरिटोरियल मेल जो होते हैं उसमें सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्गर होते हैं वो रिसोर्स बेस्ड टेरिटरी प्रोटेक्ट करता है। मतलब पानी उसके पास होता है, अच्छे वाला पलेटेबल ग्रास उसके पास होता है, तो फीमेल को वहां आना ही आना है खाने के लिए, और उसका वो फायदा उठाएगा। दैट इज द सर्वाइवल स्ट्रेटेजी एनिमल्स की जो है वो, तो वो ये है। तो यहाँ के जो ग्रुप स्ट्रक्चर है वो अलग अलग है। एक आपने आगे वाला जो एक पिक्चर देखा, वहाँ पे एक मेल है और थोड़ी सी फीमेल है, उसको हैरम बोलते हैं, इसको क्वैसी हैरम ग्रुप बोलते हैं, वो ये टेरिटोरियल मेल है। ये सब ग्रुप स्ट्रक्चर है यहाँ के अलग अलग।
ये क्वेसी हॉर्म है, हैरम है, उसमें 1-2 मेल होते हैं, सब एडल्ट मेल होते हैं, काफी सारी फीमेल और बच्चे होते हैं, तो इसको क्वेसी हैरम ग्रुप बोलते हैं। और चौथा जो ग्रुप स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं बैचलर ग्रुप या तो ऑल मेल ग्रुप। अब ये ऑल मेल ग्रुप कैसे बनता है? जब ये एनिमल ऑलमोस्ट 6 से 10 महीना टेरिटरी में रहता है, अपनी टेरिटरी डिफेंड करता है, तो वो कहीं नहीं जाता है, पूरे दिन वहां रहता है, तो इसकी जो हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन है उसके साथ वो फाइट करता है, तो उसकी एनर्जी लेवल है ग्रेजुअली डाउन होती है। तो जब कुछ हद से ज्यादा थ्रेशोल्ड लेवल से कम होगी उसकी एनर्जी, तब दूसरे जो मेल होते हैं उसको भगा देंगे फाइट करके, और उसकी टेरिटरी वो कैप्चर कर लेंगे। और ऐसे भगाए हुए किक्ड आउट मेल जो होते हैं वो सब इकट्ठे हो जाते हैं और ये बनाते हैं बैचलर ग्रुप। वो पूरे पार्क में घूमते रहते हैं और एनर्जी अपनी रीगेन करते हैं, और ऑलमोस्ट 1 साल जब ऐसे एनर्जी रीगेन होएगी फिर वहां जाएंगे और दूसरे को भगाएंगे, वो भागा हुआ सब यहाँ आएंगे। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग उसकी बिहेवियर पैटर्न है। तो ये ऐसा है बैचलर ग्रुप। तो ये बैचलर ग्रुप भी 500-600 मेल का बनता है, और पूरा ग्रुप जो है ऐसा बैठा हुआ होता है, तो हमको ये दिखते हैं कि ये पूरे बैचलर ग्रुप है, वो ऐसे एरिया में घूमते रहते हैं। तो ये ब्लैक बक वाली बात हुई। कुछ ब्लैक बक में जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं, जो डिफॉर्मिटीज उसकी हॉर्न्स में होती है, उसके कलर में होते हैं, ये यहाँ दिखाई गई है। तो कभी कभार वो भी एक टाइप का जेनेटिक डिसऑर्डर है। इसके बाद का जो प्लेन जो है वो वुल्फ का है। कीस्टोन स्पीशीज जो है वो वुल्फ है। आपने येलोस्टोन नेशनल पार्क का किस्सा पढ़ा होगा या तो जाना होगा, अमेरिका का येलोस्टोन नेशनल पार्क, जहाँ से वुल्फ डिसअपियर हो गए तो पूरी इकोसिस्टम कोलैप्स हो गई। तो यहाँ का सिनारियो भी ये है कि पूरे गुजरात में वुल्फ पॉपुलेशन इज एस्टिमेटेड अबाउट 250 to 300 एनिमल्स, इंडियन ग्रे वुल्फ, और पूरे इंडिया में इट इज ऑलमोस्ट अराउंड 2500 to 3000। ये वुल्फ की सिनारियो है। इट इज हाईली क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज, टाइगर से भी ज्यादा रिस्क इसके ऊपर है। तो ये जो है हमारा नेशनल पार्क और सराउंडिंग एरिया, जिसको हम भाल रीजन बोलते हैं, उसका एस्टिमेटेड वुल्फ पॉपुलेशन एज पर द फॉरेस्ट ऑफिसर्स एंड आवर ऑब्जर्वेशन इट इज अराउंड 70 to 80 wolves. Now out of 250 in entire Gujarat, 70 to 80 wolves are located here. Now this is the another significance of this park. कि इसके लिए भी इसके महत्व है कि इतने ज्यादा वुल्फ पर यूनिट एरिया कहीं नहीं है, पूरे इंडिया में नहीं है। उसके बाद का जो पिक्चर है वो द स्ट्रेटेजिक हंटिंग वुल्फ का दिखाते हैं। उसमें आप देखिए कि यहाँ का स्टडी ऐसा कहता है कि ज्यादातर हंट होते हैं वो मेल का होता है, क्योंकि मेल जो टेरिटरी करते हैं, टेरिटोरियल होते हैं, वो अकेले रहते हैं, और अकेले जो मेल होते हैं वो ज्यादा शिकार बन जाते हैं। तो ये ग्रुप हंटिंग करते हैं वुल्फ, उसको पैक हंटिंग भी कहते हैं, ग्रुप हंटिंग भी कहते हैं। तो ये हमको यहाँ पे दिखते हैं। तो वुल्फ के लिए ये दूसरा सिग्निफिकेंस है हमारे ये लेपर्ड नेशनल पार्क का। तीसरा जो है वो दैट इज लार्जेस्ट अम्यूटेट ऑफ लार्जेस्ट एंटीलोप ऑफ द कंट्री, नील गाय और ब्लू बुल। ब्लू बुल जो है यहाँ का लार्जेस्ट, पूरे कंट्री का हमारे जो एंटीलोप स्पीशीज है उसका लार्जेस्ट एनिमल है। क्रॉप रेडिंग के लिए फेमस है, फार्मर्स के लिए वो हेडेक है, लेकिन इट इज ए पार्ट ऑफ इम्पोर्टेंट फोना ऑफ दिस पार्क। तो आजू बाजू के एग्रीकल्चर एरिया में भी वो चले जाते हैं, क्रॉप रेडिंग करते हैं, और उसकी काफ़ी सारी कंप्लेंट्स जो है वो डिपार्टमेंट के पास आती है। तीसरा जो है ये जो है वो अदर कार्निवोर्स है, जिसमें जैकॉल्स है, फॉक्स है और जंगल कैट है। तो ये सब हमारे लेसर कार्निवोर्स हैं, और ये सब कार्निवोर्स इकोसिस्टम के बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। लास्ट जो प्लेट है ये वो वाइल्ड बोर है, और वाइल्ड बोर का भी एक अपना सिग्निफिकेंस होता है, क्योंकि वो रोस्ट्रम जो है
कुछ स्पीशीज का वो अप्रूव कर देते हैं, तो उसके हिसाब से वो हेल्प भी करते हैं। उसके बच्चे जो होते हैं छोटे, वो वुल्फ का फूड भी है, जैकल का भी फूड है। वो अदर स्मॉल बायोडाइवर्सिटी जो है, रेप्टेलियन बायोडाइवर्सिटी है हमारी, वो है हैरियर के लिए। हैरियर यहाँ आता है तब काफी सारी नंबर्स में आते हैं। रॉजर क्लार्क करके एक ब्रिटिश साइंटिस्ट था, उसने पूरे वर्ल्ड में हैरियर के ऊपर स्टडी किया, अफ्रीका में भी किया, यूरोप में भी किया और इंडिया में भी किया, पूरे एशिया में किया रादर। तो ये बर्ड ऑफ प्रे है, एक हंटिंग बर्ड है, रैप्टर से। सामने उसकी 4 स्पीशीज को डिस्क्राइब किया है, रेड हैरियर, मार्श हैरियर, मॉन्टेगूज हैरियर और पैलीड हैरियर। इसमें से हैन हैरियर सबसे कम आती है, 2 से 2500 3000 हैरियर्स आते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ का एरिया जो है 34 स्क्वायर किलोमीटर का है। 34 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में इतने सारे बर्ड्स ऑफ प्रे कहीं है पूरे वर्ल्ड में, तो ये सिर्फ एक ही जगह पे। दो दे आर इन विंटर ओनली, बट इट इज रिकॉर्डेड एज ए हाईएस्ट ग्लोबल पॉपुलेशन ऑफ विंटरिंग हैरियर एट वन सिंगल प्लेस। तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड वाला सिग्निफिकेंस है। तो यहाँ हैरियर का एक कैरेक्टरिस्टिक ये होता है कि रात को वो ग्रास के अंदर छुप जाते हैं, नाइट होल्ट जो करते हैं, जिसको हम रोस्टिंग बोलते हैं, वो ग्रासलैंड में करते हैं। वो बैठ सकते हैं ट्री के ऊपर, आराम से बैठ सकते हैं, दिन को आपको ट्री के ऊपर बैठे हुए दिखाई भी देंगे, लेकिन रोस्टिंग तो वो नीचे ही करेंगे ग्राउंड पे। अब ये उसका यूनिक बिहेवियर है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ग्रासलैंड के साथ आजू बाजू की क्रॉपलैंड में भी वो जाते हैं और क्रॉपलैंड में से लोकस्ट खाते हैं, ग्रास हॉपर्स खाते हैं। अभी यहाँ के जो कैश क्रॉप है यहाँ के आसपास के एग्रीकल्चर लैंड का, वो 2 है। वन है शोरगम, जिसको हम ज्वार बोलते हैं, और दूसरा है कॉटन। तो कॉटन के अंदर जब हैरियर आती है तब कॉटन का क्रॉप खड़ा होता है क्रॉपलैंड में, तो वो उसमें से ग्रास हॉपर खा जाते हैं। अब रिसर्च ऐसा कहता है कि एक हैरियर हर रोज का एवरेज 10 ग्रास हॉपर खाता है, वन बर्ड, और you multiply it with 2500. Every day they are removing this many number of locusts from our cropland. So 25,000 locust is being removed every day from the surrounding cropland. That is the best help to our farmers. दूसरा, ये जो हैरियर्स है ऑलमोस्ट 3 महीने रुकती है, सितंबर एंड में आ जाती है और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक रहती है, 4 महीने रहती है। फरवरी एंड से वो रिटर्न जाती है। तो वहां तक हमारे इतने ग्रास हॉपर रिमूव करती है। तो क्रॉप लैंड में ये इज मोस्ट बेनिफिशियल एंड फार्मर्स फ्रेंडली एनिमल। So this is the significance of our national park, and national park is protecting and facilitating this population of harrier for roosting in grassland. अगर grassland well managed नहीं होती तो ये population रह नहीं पाता। तो ये यहाँ आता है, that is a signal that the grassland management is proper. हैरियर्स को कैसे काउंट करते हैं? जैसे आपने बोला हैरियर को ऐसे काउंट करते हैं, मैं आपका आगे मैप में दिखाता हूँ। ये देखो इसकी बिहेवियर है, इसको होवरिंग कहते हैं। और होवरिंग करते करते सनसेट का जब टाइम आता है तो उससे 1 घंटे पहले होवरिंग चालू होता है, और ये होवरिंग के दौरान वो सेफ प्लेस ढूंढते हैं और ऐसे करके नीचे ग्रास में छुप जाएंगे। और मॉर्निंग विद द फर्स्ट लाइट ऑफ सन वो यहाँ से उठ जाएंगे और अपने फॉरेजिंग के लिए निकल जाएंगे। तो अगर रेनफॉल बढ़ रहा है और वाटर लॉगिंग बढ़ रही है तो स्पीशीज कंपोजिशन चेंज हो जाएगा। तो ये हमको देखने मिल रहा है। इस बार हम आते थे तो हम वही बात करते थे कि यहाँ पे हमने वाइट वाटर लिली इस बार देखा। तो मैं तो 35 साल से यहाँ आ रहा हूँ, तो मैंने ये पहली बार देखा। तो वाइट वाटर लिली आई, उसका मतलब ये हुआ कि सॉइल सैलिनिटी काफ़ी डाउन हो गई। वाटर लिलीज जो है सलाइन वाटर में कभी नहीं आती। तो ये सिग्निफिकेंस है। अगर स्पीसीज कंपोजिशन चेंज होता है तो उसमें हैबिटेट में कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है।
तो ये कोई भी चेंज होगा तो उसका असर पूरी इकोसिस्टम पे होगा ही होगा। वो भी आपको बता दूं, एक आपने जो देखा कि बड़े श्रब्स जो आप देख रहे हैं वो है प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा। अभी उसका नाम अपडेट हुआ है, प्रोसोपिस चाइलेंसिस हुआ है। तो ये इन्वेसिव स्पीशीज है यहाँ की। और वो हिस्ट्री ये बताता है कि ये 1940 के बाद आई है, उससे पहले नहीं थी प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा। तो इंडिजिनस स्पीशीज जो यहाँ थी वो साल्वाडोरा थी, और प्रोसोपिस सिनेरेरिया थी, खेजरी बोलते हैं जिसको राजस्थान में, वो थी। तो वो ग्रेजुअली जा रही है और ये इन्वेसिव हो रही है। तो उसको मैनेज करना ये सबसे बड़ा टास्क है ग्रासलैंड मैनेजर्स के लिए। उसको अप्रूट करना पड़ता है, क्योंकि प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा के जो पोड्स होते हैं वो बहुत स्वीट होते हैं। तो ब्लैक बक्स काफ़ी खाते हैं, ब्लैक बक्स एंड ब्लू बुल्स। तो जहाँ पे वो डिफिकेट करेंगे वो सीड वहाँ पे जर्मिनेट होगा, और काफ़ी मात्रा में होता है। तो ये पूरी वो लेबर्स की फौज लगाते हैं और ऐसे कॉम्बिंग करते हैं जैसे, और सब अप्रूट करना पड़ता है, वरना तो विद इन ए डिकेड पूरी ग्रासलैंड खत्म हो जाएगी और वुडलैंड बन जाएगी। तो ये सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग टास्क है कि मैनेजमेंट ऑफ ग्रासलैंड, उसको वुडलैंड बनने से रोकना है। अगर वुडलैंड बन गई तो काफ़ी स्पीसीज चली जाएगी, ग्रासलैंड स्पीसीज है वो चली जाएगी। तो एक तो ये है। दूसरा ये है कि ग्रास जो है वो सिर्फ मॉनसून के 3-4 महीने ही ग्रीन रहती है, बाकी ड्राई हो जाती है। और ड्राई ग्रासलैंड में सबसे बड़ा चैलेंज है वो फॉरेस्ट फायर का है। तो फायर के हिसाब से एक बार हम लोग ब्लैक बक काउंट कर रहे थे इन मंथ ऑफ मे, और ऐसे क्लाइमेट बदल गया, वेदर सडनली चेंज हुआ और बारिश का वो हो गया माहौल, और लाइटनिंग हुआ, बिजली गिरी। तो बिजली गिरी यहाँ पे ग्रासलैंड में और फायर पकड़ लिया। तो मोर देन 100 हेक्टर तो विद इन अ कपल ऑफ मिनट्स में जल गया। वो तो गॉड ग्रेस के हिसाब से फिर अचानक बारिश शुरू हो गई तो अटक गया, वरना इट वाज ए हेल ऑफ द जॉब टू कंट्रोल द फायर इन अ ग्रासलैंड। तो इसको कंट्रोल करने के लिए ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बहुत अच्छा काम कर रहा है कि वो फायर स्ट्रिप्स बनाते हैं। रोड साइड में तो बनाते ही हैं, लेकिन पूरा जो एक एरिया है उसमें बीच में भी 100 मीटर 75 to 100 मीटर्स के विड्थ वाले स्ट्रिप्स बनाते हैं। उसको ग्रास अपने, अभी तो मशीन मिल रही है तो ग्रास कटर मशीन से निकाल देते हैं। उसके हिसाब से 2 बेनिफिट होते हैं। एक बेनिफिट ये होता है कि फायर के समय पे कंट्रोल करना थोड़ा इजी रहता है। दूसरा बेनिफिट ये होता है कि ये हमारे जो बर्ड्स आते हैं, खास करके फ्लोरिकन इज ए क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज। अब वो जब आते हैं उसको 2 टाइप के ग्रास चाहिए, डिस्प्ले करने के लिए शॉर्ट ग्रास चाहिए और कंसीलमेंट के लिए उसको टॉल ग्रास चाहिए। तो ये जो फायर स्ट्रिप होती है उसमें दोनों मिलते हैं उसकी बाउंड्री पे, कि शॉर्ट ग्रास भी मिल जाता है, टॉल ग्रास भी मिलता है। शॉर्ट ग्रास इसलिए चाहिए कि उसकी विजिबिलिटी लंबे तक हो और वहाँ फीमेल को वो लोकेट कर सके, डिस्प्ले कर सके, प्रेडेटर को वो के लिए भी वो विजिलेंट हो सके, वो सब के लिए उसको चाहिए। तो ये हैबिटेट उसके लिए इम्प्रूव हो रहा है। एक ये भी कारण है कि यहाँ पे फ्लोरिकन्स क्यों अच्छे नंबर में मिलते हैं, क्योंकि यहाँ की मैनेजमेंट प्रैक्टिस है वो यूनिक है। सोलार पावर प्रोजेक्ट आ रहे हैं, देन सॉल्ट फार्मिंग बढ़ रही है। तो ये सब चैलेंजिंग इश्यू अभी फ्यूचर के लिए है। Jane sir, I, Chanika Burman, on behalf of Telangana State Forest Academy, Director Ma'am, here both of thanks to you, Indra sir, for sharing your valuable knowledge on the black buck, which is very important species in this unique ecosystem. Its management, the grassland management practices and the conservation efforts you have explained since the ancient times till now. And then also to you, sir, Arifo sir, for motivating us to work, how to work as a range forest officer in practical. Since we are trainee, we have learned a lot from you, sir, to how to apply all your knowledges in our practical life.
And then also, since we don't have blackbuck in our state, but we have many important species like rhino in our state, so we will like to take the knowledge of conservation from you and apply it in our state. Thank you, sir. Group photo কাৰণে পোজ দিছে চাচোন মানুহবিলাকে মই চব ডিলিট কৰি দিওঁ তোৰ ফটোজবোৰ পিছে সেইটো হয় এনেই আৰু মানে কবিৰ ইজ নট হেপী উইথ দ্য ফটো কাৰণ কি তাৰ মুখখন হৈ আছিলে একো নাই ইয়াতে তই স্মাইল কৰি দে चलो चलो ग्रासलैंड अच्छा है ना हैप्पी बर्थडे कीटी कीटी भाई ओ ब्लॉगर भाई हैप्पी बर्थडे Thank you, bro. क्यों छिपाया तुमने क्यों आधे दिन तक क्यों छुपाया तुमने? हैप्पी बर्थडे ब्रो. हैप्पी बर्थडे. कीटी भाई खुद के ब्लॉग में बोल दो कौन गम वाली ना? कौन है? आज मिल्स एंड माइल्स का बर्थडे है. आज व्हील्स एंड माइल्स का बर्थडे है तो गम ने पाली यार बर्थडे बोली. या मुड़ पाक ए गम नुपा काले मुड़ फाले पड़ा जिगास और वांस मुड़ फाले पड़ा ए दुटा दिबो ए हलो भाई हलो रा बेसी ना लियो ओ আজি অ্যাকোমোডেশন নিশা বাদ দিও অ্যাকোমোডেশন মানে খানাটো আছে বাদ দি দিবি কি তাতে নাও খা বেনা খা বছৰে বছৰে বাঢ়ি যা আৰু আমাক ভাল অ্যাকোমোডেশন দি যা ৰসমালাই কম বুলি কৈছিল এতিয়া বেছিকে পাব উঠিব দিয়া নাই এতিয়ালৈ দিব লাহেকে নাই নাই পুৰা উঠিব চেষ্টা কৰি চব মেলে আছে না সব ব্লেক বক কিন্তু একো জুম কৰি উঠাব পৰা নাই কেমেৰা ই হয়তো উঠাব পাৰিব ইয়া দুটা উঠাব প্ৰিপেয়াৰ হৈ লৈছে বিকাশে চৰাই বহুত চৰাই দেখিব ওহো মই চৰাই দেখি পাগল হৈ যাওঁ বিকাশৰ ফেভৰেট টপিক হ'ল বাৰ্ড হি লাভছ বাৰ্ড ৱাচিং আৰু তাৰ তাতে এখন মানে বুক এখন আছে সেই বুকখনত সি ভেৰাইটি অফ সলিম আলী অফ আসাম আসাম বুলি মই নকম আৰু তাৰ এখন বুক আছে সেই বুকখনত মানে সি ভেৰাইটি অফ বাৰ্ডছ সি নোট ডাউন কৰি থৈ দিছে লগতে সি ফটোগ্ৰাফিও কৰে ইটছ হিজ হবি লম্বা লাইন ফৰ লাঞ্চ नलसरोवर का जो ये वाला पार्ट दिखना है आपका 75 ये देखो ऐसा सौराष्ट्र कच्छ और जो हमारा আমি আহিছোঁ নলসৰোবৰ লেক এইটো এটা ৰামচাৰ সাইট হয় বহুত টাইপৰ বাৰ্ডছ আছে ইয়াত সেই ড্ৰাইড গছবিলাকৰ ওপৰত ঢেৰ বাৰ্ডছ আছে চাম আমি এতিয়া এইখনে হ'ল লেকটো এইবোৰ বাৰ্ডছবোৰ ইয়াত নাই ইয়াত এটা বাৰ্ড আছে নাজানো নাম এইটোৱে মানে ছিজন লৈ বহুত হয় আৰু মাইগ্ৰেটৰী বাৰ্ডছৰ ছিজন এটা থাকে বৰ্তমানতো ৰেইনি হয় ছিজনটো
মাইগ্ৰেটৰী বাৰ্ড উইণ্টাৰত বেছি আহে, হয়। কিন্তু আমাৰ এতিয়া যিবিলাক বাৰ্ড আছে এইবোৰ চব লোকেল বাৰ্ড হয় আৰু কিছুমান দুই এটা বাহিৰৰ পৰাও আহে যোনে মনচুন ৱেডাৰ ভাল পায়, কিন্তু মষ্ট অফ দ্য বাৰ্ড উইণ্টাৰ ছিজনত আহে। এতিয়া আমি এইবোৰ যি দেখিছোঁ এইবোৰ আইদাৰ লোকেল বাৰ্ড হয়, নহ'লে যিবোৰে মনচুন ৱেডাৰ ভাল পায় সেইবোৰ বাৰ্ডেই হয়। অ'কে, কিন্তু আমি যদি উইণ্টাৰ্ছত আহিলোঁ হয় ইয়াতে বহুত টাইপৰ বাৰ্ডছবোৰ দেখিলোঁ হয়। আমাক কোৱা হৈছে যে মানে চেণ্ট্ৰেল এছিয়ান ফ্লাইৱে যোনটো হয় ন, সেইটো ট্ৰেভেল কৰি ৰাছিয়া, চাইবেৰিয়া তাৰ পৰা বাৰ্ডছবোৰ আহে এইফালে, তাৰপিছত ইয়াৰ পৰা যায় উৰিষ্যাৰ পৰা যায় আমাৰ নৰ্থ ইষ্ট, এনেকৈ ট্ৰেভেল কৰে আৰু প্ৰথমতে ইয়াত আহে তাৰপিছত চিলিকাত যায় তেনেকৈ। তাৰপিছত চিলিকাত যায়, সেয়া আৰু তেনেকুৱা হয়। অফ চিজন নাওবোৰ চাফা কৰি আছে। এইটো Cormorant. উৰি আহিলে যে এইটো নৰ্মেল কাউৰী। চৰাইকেইটাৰ নাম হ'ব নেকি ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যন কৰি লওঁ, যাওঁ আৰু। মেজৰিটি কেতিয়াবা ভুল হ'ব পাৰে। গৌৰৱো বেছি আছিল আপোনাৰ এতিয়া ৰাইট হৈছে বুজিছে হেৰি দিছে কালিতো এণ্ডিং আৰু আজি ইট ৱাজ এ ভেৰি হেক্টিক ডে। ভেৰি হেক্টিক। চাও এট লাষ্ট শেষ হ'লগৈ আৰু আজি ফাৰ্ষ্ট ভিজিট ৱাজ গুড এণ্ড দিছ ইজ দ্য ছেকেণ্ড ভিজিট ৱাজ অলছ' গুড, বাট লাৰ্ণিংছ বহুত আছিলে। একচুৱেলি এইবিলাক বস্তু অকণমান সময় লৈ অহাটো বেছি ভাল, কাৰণ শিকিবলগীয়া বহুত কথা আছে, কিন্তু যিহেতু আমাৰ ওচৰত আজি সময় কম আনফৰ্চুনেটলি, গতিকে তথাপিও আমি ইয়াত যে আহিব পাৰিছোঁ এণ্ড ফিউচাৰ আকৌ চান্স থাকিব, সেইটো কাৰণে ভাল লাগিল আহি পেলাই। বহুতখিনি আজি নতুন কথা শিকিলোঁ, ঠিকে আছে আৰু।